We will start our lecture. So in this lecture, we will study about one theoretical topic, that is hydraulic pumps and motors. What are the different types of hydraulic pumps that are used in hydraulic machineries or farm machineries, and some pumps are used in mm, irrigation pumps for irrigating. Some are used in hydraulic systems. So these are called as hydraulic pumps and motors. So I will share one screen regarding that. So pumps and motors. So there are different symbols of these pumps. So first we will say what do you mean by pumps. Pumps are the unit that transfer mechanically is also in terms of electrical power into fluid power. And a motor transport the fluid power into mechanical powers. Okay, fluid power into mechanical power, and a pump transfer mechanical power into fluid powers. Both are vice versa to each other. Pumps can be driven by electrical drives, internal combustion engine, turbine or P2 of the shaft. पंप्स हे कोण्या पद्धतीने ड्राइव्ह केले जाऊ शकतात, बाय युजिंग इलेक्ट्रिक करंट or IC engines, turbines or power take-up unit of the tractor. So it is essential that RPM of input drive is compatible with rated RPM of the pump. The use of gear of high-speed main drive is often employed. Then there are some symbols of these pumps and motors. तर असा जो सिम्बॉल असेल तर याला म्हणतात फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप. अशा टाईपचा एरो असा सिम्बॉल असेल तर व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप्स. त्यानंतर फिक्स डिस्प्लेसमेंट मोटारचा सिम्बॉल हा असा आहे, व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मोटारचा सिम्बॉल हा असा. त्यानंतर खालचा पोर्शन आपल्या कामाचा नाही आहे. दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट, सो वी विल स्किप दॅट पोर्शन. नेक्स्ट इज आपलं पंप परफॉर्मन्स अँड रेटिंग असा एक टॉपिक तुम्हाला आहे. तर पंप मोटर रेटिंग डिस्प्लेसमेंट हे लीटर पर रिव्होल्यूशन, फ्लो लीटर पर मिनिट, प्रेशर मेगापास्कल बार्स PSI आणि पॉवर PQ. त्यानंतर पंप किंवा मोटरचे टाइप्स. This section introduces the various type of pumps and motors that are available for hydraulic system. The pumps and motors in a similar way, just one small discuss. There are two main categories: hydrodynamic and positive displacement pump. एक है hydrodynamic pump, एक है positive displacement pump. So what do you mean by hydrodynamic pump? दोन बेसिक टाइप्स ऑफ पंप आहे, सेंट्रिफ्युगल अँड टर्बाइन पंप. हायड्रोडायनेमिक मध्ये पहिला जो टाइप आहे तो आहे सेंट्रिफ्युगल, दुसरा आहे टर्बाइन पंप. तर हा जो पंप तुम्हाला दिसतो हा सेंट्रिफ्युगल टाइप पंप आहे. सो इन दिस पंप देयर इज वन इम्पेलर. दिस इज अ इम्पेलर. देयर इज वन इनलेट अँड देयर इज वन आउटलेट ऑल्सो. यूज ऑफ ऑक्झिलरी फंक्शन ऑफ हायड्रोलिक सिस्टीम मध्ये आपण याला यूज करू शकतो. इट इज यूज इन मोस्ट एप्लिकेशन वेअर ओनली रेजिस्टन्स इन्स्काउट दॅट इज क्रिएटेड बाय वेट और फ्लुइड इटसेल्फ. हा सेंट्रिफ्युगल पंप जनरली आपण बघितलेला असेल आपल्या घरी, जो पाण्याचा पंप असतो किंवा बऱ्याच ठिकाणी सेंट्रिफ्युगल टाइप पंप यूज केला जातो. त्यांना पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप डिलिव्हर अ फिक्स अमाऊंट ऑफ फ्लुइड पर रिव्होल्यूशन. Positive displacement pumps categorized into two categories: fixed displacement pump and variable displacement pump. So this is the flow chart. Positive displacement is categorized into fixed displacement pump and variable displacement pump. The fixed displacement pump चे परत सब टाइप्स पडतात: gear, balance vane, piston pumps. Gear pump is divided into external gear, internal gear, and piston pump is divided into radial, bent, and axial. Then variable displacement pump, vane pump, piston pump. Vane pump is divided into direct operated, pilot operated. Piston pump is again divided into radial piston, bend, axis and axial piston. Same. The piston pump हा दोन्ही याच्यामध्ये येतो, फिक्स मध्ये पण येतो आणि व्हेरिएबल मध्ये पण येतो. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे.
एक्सटर्नल गिअर पंप अँड मोटर्स. आता एक्सटर्नल गिअर पंप्स हा अशा पद्धतीचा दिसतो. दिस इज एक्सटर्नल गिअर पंप. टू गिअर आर मेश विच एक्सटर्नली विथ इच अदर अँड वन moves in a clockwise direction and one moves in anti-clockwise direction, and the fluid come from this side and फ्लुइड या पोर्शन मधून येते असं फ्लुइड, आणि इथून ट्रान्सफर होऊन या बाजूला जाते, या बाजूला ट्रान्सफर होऊन या बाजूला जाते. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल गिअर पंप. स्पर गिअर ट्रॅप फ्लुइड बिटवीन गिअर टीथ अँड केसिंग. हे स्पर गिअर आहे, गिअर टीथ अँड केसिंग, या केसिंग मध्ये ते ट्रॅप झालेले आहेत. It is a pump capacity. Fluid is removed from suction cavity, reducing pressure. The fluid is drawn from a reservoir to replace it. When used as a motor, external drain which is connected to the bearing and lubrication is needed. The torque is produced through the pressure of the gear of the tooth. त्याचे लिमिटेशन काय आहे? हे युजली रिस्ट्रिक्टेड टू प्रेशर ऑफ 38.8 मेगापास्कल्स. 2400 RPM पर्यंतच आपण याला यूज करू शकतो, आणि हा 31 मेगापास्कल पर्यंतच ऑपरेट होऊ शकतो जर स्पेशल बेरिंग यूज केला तर, आणि याचा नॉइज खूप जास्त होतो. हा एक्सटर्नल गिअर पंप आहे. याचे ऍडव्हान्टेजेस काय? इट इज सिम्प्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन. They have high dirt tolerance, offset by lower efficiency, most popular in low pressure range, display good life expectancy, low in cost, आर फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ नेचर. त्यानंतर दुसरा आहे जो इंटरनल गिअर टाइप पंप आहे. हा इंटरनल गिअर्स हे इंटरनली मेश असतात विथ इच अदर. एक केसिंग तुम्हाला दिलेली आहे. या केसिंग मध्ये हा एक गिअर आहे. हा रेड कलरचा जो ऑरेंज कलरचा तुम्हाला दिसतो हा गिअर आहे, आणि एक व्हाईट कलरचा जो आहे तो दुसरा आहे. याच्यामध्ये हा मेच झालेला आहे इंटरनली. ओके, सो फ्लुइड दॅट कम्स इज ट्रान्सफर हिअर फ्रॉम धिस वे. इथून तुमचं फ्लुइड येणार आणि असं तुमचं ट्रान्सफर होणार या बाजूला. त्यानंतर इंटरनल गिअर पंप्स. सो गिअर अनमेश अँड रिमेश टू रिलेटिव्हली लो स्पीड. जिथे लो प्रेशर लो स्पीड पाहिजे इथे तो यूज केला जातो. त्यानंतर जिरोटर पंप इज लुक लाईक दिस. ठीक आहे, इथे हे कॅव्हिटी असते, इथून सक्शन, इथून येते फ्लुइड आणि असं ट्रान्सफर होत या बाजूला पडते. जिरोटर मोटर्स internal rotor is driven and drive the outer rotor in mesh. The tip of internal rotor contact with the rotor to seal the chamber of each other. आता याचं वाटल्यास मी तुम्हाला एक ॲनिमेशन पण दाखवेल, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातून नीट आयडिया येईल. तर या जिरेटर पंप्स मध्ये काय प्रॉब्लेम्स येतात? लिकेज होतो. त्यानंतर लिकेज कुठे होतो? क्रॉस पोर्ट मध्ये होते, आउटसाइडला होते, मिडलला होते, अलॉंग द साइड्सला होते. तो मिनिमाइज यूज ब्रॉन्झ विअर प्लेट. याच्यामध्ये ब्रॉन्झ विअर प्लेट्स आपल्याला यूज केल्या जातात. त्यानंतर स्क्रू पंप इज लुक लाईक दिस. त्याच्यानंतर स्लायडिंग व्हेन पंप्स, त्याच्यामध्ये व्हेन्स दिलेले असतात. तर सर्वात पहिले मी याचं तुम्हाला एक आय विल शो यू वन व्हिडिओ रिगार्डिंग दॅट, सो यू विल गेट कम्प्लीट आयडिया. रिलेटेड एक मी तुम्हाला व्हिडिओ शेअर करतो, तुम्हाला आयडिया येईल. व्हिडिओ झाल्यानंतर आपण मग थेरॉटिकल वर जाऊ. So pumps and motors. We will get different videos regarding that different pumps. The pumps मध्ये the pump through the inlet located here. This side of the pump is also called the suction side. The pressure of the liquid is lowest at this point. The purpose of the pump's casing is to contain the liquid inside the pump during operation. The casing houses of all the pump's internal parts. The liquid leaves the pump through the outlet. This side of the pump is also called the discharge side. The pressure of the liquid is highest at this point.
Inside the pump, there is a component that physically moves the liquid through the pump. The type of component that's used determines the type of pump. Basically, pumps can be grouped into two general categories: positive displacement pump and dynamic pump. A positive displacement pump makes a fluid move by trapping a fixed amount of the fluid and forcing or displacing that trapped volume into a discharge pipe or discharge system. Some positive displacement pumps use an expanding cavity on the suction side and a decreasing cavity on the discharge side. Dynamic pumps impart velocity and pressure to the fluid as it moves past or through the pump impeller and subsequently convert some of that velocity into additional pressure. It's also called kinetic pumps. These pumps operate by developing a high liquid velocity and converting the velocity to pressure in a high diffusing flow passage. Types of positive displacement pump. A positive displacement pump can be further classified according to the mechanism used to move the fluid. There are three types: rotary type positive displacement, and reciprocating type positive displacement, and linear type positive displacement. Rotary type positive displacement. The nature of rotary pump requires very close clearance between the rotating pump and the outer edge, making it rotate at a slow steady speed. If rotary pumps are operated at high speeds, the fluids cause erosion, which eventually causes enlarged clearance that liquid can pass through, which reduces efficiency. Rotary positive displacement pumps fall into three main types. Gear pumps. Gear pumps are simple type of rotary pump where the liquid is pushed between two gears. Screw pumps. Screw pumps are the shape of internal of this pump is usually two screws turning against each other to pump the liquid. Rotary vane pumps. These pumps are similar to scroll compressors. These have a cylindrical rotor encased in similarly shaped housing. As the rotor orbits, the vane trap fluid between the rotor and the casing, drawing and the fluid through the pump. Reciprocating type positive displacement pump. Reciprocating pumps move the fluid using one or more oscillating pistons, plungers or membranes, while valves restrict fluid motion to the desired direction. In order for suction to take place, the pump must first pull the plunger in an outward motion to decrease pressure in the chamber. Once the plunger pushes back, it will increase the pressure chamber and the inward pressure of the plunger will then open the discharge valve and release the fluid into the delivery pipe at a high velocity. Typical reciprocating pumps are plunger pumps. A reciprocating plunger pushes the fluid through one or two open valves, closed by suction on the way back. Diaphragm pumps. Similar to plunger pumps where the plunger pressurizes hydraulic oil which is used to fix a diaphragm in a pumping cylinder. Diaphragm valves are used to pump hazardous and toxic fluids. Piston pumps. Displacement pumps usually simple devices for pumping small amounts of liquid or gel manually. The common hand soap dispenser is such a pump. Dynamic pumps are one category of pumps under which there are several classes, two of which are centrifugal pumps and special pumps. Centrifugal pumps. A centrifugal pump is a rotating machine in which flow and pressure are generated dynamically. The energy changes occur by virtue of two main parts of the pump: the impeller of the volute or casing. The function of the casing is to collect the liquid discharged by the impeller and to convert some of the kinetic energy into pressure energy. Centrifugal pumps are subdivided into several categories. Axial flow pumps. Axial flow pumps are high flow, low pressure pumps which lift fluid in a direction parallel to the impeller shaft. Mixed flow pumps. Mixed flow pumps are medium flow, medium pressure pumps which push fluid out away from the pump shaft at an angle greater than 90 degrees. Radial flow pumps. Radial flow pumps are high pressure low flow pumps which accelerate fluid along the impeller blades perpendicular to the shaft.
Special pumps. There are also a number of special types of dynamic pumps which are defined by certain characteristics. Cantilever pumps. Cantilever pumps are centrifugal pumps with long cantilever design used in some pump application. Jet pumps. Jet pumps are kinetic pumps with an ejector attached at the discharge outlet, utilizing the Venturi effect and motive fluid to generate pumping pressure. Turbine pumps. Turbine pumps are centrifugal pumps that use pressure in combination with a rotary mechanism with numerous small impellers and vanes to transfer energy to fluid. Dear sir, thanks for watching the video. For more update, please subscribe to our channel. अजून रिलेटेड थोडी मी तुम्हाला थ्योरी सांगतो, परत त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला व्हिडिओज दाखवतो, म्हणजे यू विल गेट अ डेफिनेट क्लिअर आयडिया रिगार्डिंग दॅट. आणि ही पीडीएफ मी तुम्हाला गुगल क्लासरूमवर शेअर करणार आहे आपल्या लेक्चर झाल्यावर, त्याच्यामुळे तिथे सगळं असणार आहे. तुम्हाला इकडे तिकडे नोट शोधण्याची गरज नाही. त्यानंतर हा व्हेन पंप्स आहे, ह्याच्यामध्ये व्हेन्स असतात दिलेले, त्याचं ऑपरेटिंग मी तुम्हाला याच्यावर दाखवेल. हा व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप आहे व्हेन पंप. त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय? रिंग्स अँड सरफेस वेअर इज कॉम्पेन्सेटेड बाय व्हेन्स मुव्हिंग आउट देअर स्लॉट्स. व्हेन पंप कॅन सफर फ्रॉम अ कॅव्हिटेशन प्रॉब्लेम ड्यू टू शूटिंग. त्यानंतर हा व्हेन पंप तुम्हाला दिसतो इथे. त्यानंतर नेक्स्ट अजून एक पंप आहे, तो आहे पिनलेट वॉल पंप. दिस इज ऍक्सियल इनलाइन पिस्टन पंप. पिस्टन पंप हा अशा स्वरूपाचा असतो, इथे मला दिसतो. तर सर्वात पहिले मी तुम्हाला आय विल शो यू वन अनदर व्हिडिओज रिगार्डिंग दॅट, सो यू विल गेट अ क्लिअर आयडिया. मला साऊंड येण्यासाठी परत मी शेअरिंग स्टॉप करतोय. ओके. Hey there guys, Paul here from theengineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at pump curves to learn how to read them and what the different lines mean. After you've learned about pump performance curves and the part they play in pump selection, visit today's sponsor, statesupply.com, to find the right pump for your curve requirements, shop for parts, or speak to a knowledgeable pump expert on top brands like Bell & Gossett, Taco, and more. Just click the link in the video description below to find out more. The basic pump curve looks like this, but they do get more complicated and look something like this. The reason for feet or meters is that pump manufacturers only know how high their pump can push a liquid. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी. शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को. तो पहला सवाल है कि व्हाट इज पंप, आखिर पंप है क्या. तो पंप एक ऐसी डिवाइस है जो कि लिक्विड या गैस या ये कहें स्लरी मतलब होता है गारा या कीचड़ जैसा कोई मटेरियल, ऐसे चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने में काम आता है. और इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में पंप मैकेनिकल एक्शन का सहारा लेता है. और अगर एनर्जी के टर्म से बात करी जाए तो पंप एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंप के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन कैसा होता है. तो पंप चलता है हमारा प्राइम मूवर के द्वारा, और प्राइम मूवर है हमारा यहाँ पर मोटर. मोटर के अलावा दूसरा प्राइम मूवर इंजन भी हो सकता है. तो पंप को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से चलती है हमारी मोटर. मोटर हमको देती है मैकेनिकल एनर्जी,
और मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके पंप लिक्विड के अंदर कन्वर्जन करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। यानी कि डायरेक्ट कहा जाए तो पंप एक ऐसा डिवाइस है जो कि मोटर की एनर्जी को कन्वर्ट करता है लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में। यहां बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पंप की। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो कि कॉमनली हर जगह यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कुएं से पानी निकालना है तो आप पंप का यूज कर सकते हैं। आपका फिश एक्वेरियम है, वहां पर पंप का यूज होता है। अगर आपका कोई फिल्टरिंग प्लांट है वहां पर पंप का होता है। अगर आपका कोई लेक है या आपका पॉन्ड है और वहां पर एरेशन वर्क है, एरेशन होता है पानी के अंदर रिप्लेसमेंट पंप, और सेकंड है फ्लेक्सिबल इंपेलर पंप। अब हम जानेंगे इन सब के बारे में डिटेल में। तो ये पहला पंप है हमारा रोटरी गियर पंप। इस पंप में एक केसिंग होती है, ये जो है ये हमारी केसिंग, और इसके अंदर होते हैं दो गियर। ये हमारे दो गियर, ये दोनों गियर किसी प्राइम मूवर की सहायता से चलते हैं, और जब ये दोनों गियर एक दूसरे से मिलकर चलते हैं तो ये जो इसका बीच का कांटेक्ट पॉइंट है इसको कहते हैं हम मैश पॉइंट। जब ये दोनों गियर घूमते हैं तब इनके दांतों के बीच में जो स्पेस बना होता है, इन स्पेस के बीच में वाटर फंस जाता है, और ये केसिंग और ये जो दांत हैं बिल्कुल क्लोज फिटिंग बनाते हैं, जिसके कारण जो हमारा वाटर है वो वापस नहीं आ पाता है, और इन दांतों के बीच में फंसकर ये जो वाटर है धीरे धीरे हमारा आउटलेट में चला जाता है। रोटरी गियर पंप का यूज करा जाता है हमारा इंजन ऑयल पंप में और हाइड्रोलिक पावर पैक में। इसके बाद आता है हमारा प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। इस पंप में एक शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के ऊपर कुछ कैविटीज या एक बकेट टाइप कैविटीज बनती हैं। जब ये शाफ्ट घूमती है तब ये कैविटीज पानी को अपने साथ ले जाती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ाती जाती हैं। इस पंप का यूज होता है हमारा सीवेज पे, और साथ में जो भी हमारे गाढ़े लिक्विड हैं, जो काफी थिक लिक्विड है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में इस कैविटी पंप का यूज करा जाता है। यह हमारा रोटरी लोब पंप। रोटरी लोब पंप गियर पंप के समान होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गियर की जगह पर लोब बने होते हैं। ये है लोब, जिसको हम लोब कहते हैं। ये इसका सक्शन पॉइंट है, ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है। इसमें भी ये लोब एक प्राइम मूवर की सहायता से घूमते हैं, और इन लोबों का जो ये कांटेक्ट पॉइंट है ये कहलाता है इसका मैश पॉइंट। और जब ये दोनों लोब घूमते हैं तो इनके लोब के बीच में जो खाली जगह है वहां पर वाटर भर जाता है, और केसिंग और लोब के बीच में जो पानी है वो इन लोब के रोटरी मोशन के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। रोटरी पंप का यूज करा जाता है सॉलिड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर। कुछ फ्रूट इंडस्ट्रीज हैं जहां पर चेरी और ऑलिव जैसे फ्रूट का यूज करा जाता है, तो इन फलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इसी रोटरी लोब पंप का यूज करा जाता है। साथ में जहां पर स्लरी या पेस्ट टाइप का कोई लिक्विड होता है वहां पर भी रोटरी लोब पंप का यूज करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा स्क्रू पंप। स्क्रू पंप में हमारा दो स्क्रू होते हैं और ये आपस में मैच होकर चलते हैं, और इन्हीं स्क्रू के बीच में हमारा वाटर जो होता है वो पैक हो जाता है, और इसके मूवमेंट के कारण हमारा जो वाटर है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। स्क्रू पंप का यूज करा जाता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन में, ऑयल बर्नर में, और जहां पर भी हमारा लुब्रिकेशन को सर्कुलेट करना है वहां पर
स्क्रू पंप का यूज करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा रोटरी वेन पंप। रोटरी वेन पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और इसके अंदर हमारी होती है वेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच का हमारा एक सर्कल है ये हमारा रोटर और ये जो है ये कहलाती है हमारी वेन्स। ये बीच की है हमारी शाफ्ट जिस पर हमारा रोटर लगा हुआ है। जब ये शाफ्ट घूमती है तो ये रोटर भी घूमता है। ये है हमारा इनलेट और ये हमारा आउटलेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेन्स होती हैं इस केसिंग से बिल्कुल क्लोजली टाइट होके चलती हैं। यहाँ आप देखेंगे जब वाटर यहाँ पर इनलेट होता है और ये हमारी मूवमेंट है वेन्स की, जब ये घूमता है और यहाँ पर हमारा हो रहा है वाटर आउटलेट। आप यहाँ देखेंगे कि वेन्स जब यहाँ पर आती है तो वेन्स अंदर हो जाती हैं और जब यहाँ पर वेन्स आती है तो यहाँ पर ये बाहर हो जा रही हैं। यानी कि ये वेन्स आगे पीछे हो सकती हैं, यानी कि एक स्प्रिंग एक्शन का काम करती हैं और इसी स्प्रिंग एक्शन के कारण ये वेन्स इस केसिंग से टाइटली कांटेक्ट में रहती हैं। रोटरी वेन पंप का यूज करा जाता है हमारा पावर स्टीयरिंग में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का है ये है हमारा इम्पेलर जो कि फ्लेक्सिबल है। जब ये इम्पेलर घूमता है तो ये क्रिएट करता है वैक्यूम और इसी वैक्यूम के कारण हमारा लिक्विड इस पंप में आ जाता है। ये जो इसकी वेन्स है यहाँ पर इस केसिंग से क्लोजली टाइट है और ये वाटर को अपनी वेन्स के जो बीच का गैप है इसमें लॉक करके आउटलेट तक पहुंचा देता है। इस इम्पेलर पंप का यूज करा जाता है हमारा फूड प्रोसेसिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में और हमारा यह है पिस्टन, ये है हमारा सक्शन, ये हमारा डिस्चार्ज। ये जो दो हैं ये है हमारा सक्शन वाल्व, ये है हमारा डिस्चार्ज वाल्व, ये है हमारी क्रैंकशाफ्ट और ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड। क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए हम मोटर या इंजन किसी का भी यूज कर सकते हैं। इस पिस्टन पंप में होता क्या है, जब ये पिस्टन यहां से इधर मूव करता है यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करता है तब ये जो ग्रीन एरिया है यहां पर क्रिएट होता है वैक्यूम। क्योंकि जो हमारा बाहर का वाटर लेवल है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हमारा वाटर है वो इस वाल्व के द्वारा इस जगह पर पहुंच जाता है जो कि कहलाता है हमारा सिलेंडर। और जब हमारा पिस्टन राइट से लेफ्ट मूव करता है यानी कि ये जो मूव करा यहां पर, तब क्या होता है ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है ये ओपन हो जाता है और जो सक्शन वाल्व है वो बंद हो जाता है और ये जो पिस्टन है इस लिक्विड पर या कहें वाटर पर एक फोर्स लगाता है जिसके कारण ये अपने डिस्चार्ज पाइप से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो ये है आपका वर्किंग पिस्टन पंप की। पिस्टन पंप के द्वारा आप लिक्विड को भी मूव कर सकते हैं और साथ में अगर आपका कोई गैस है उसको भी कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बकेट पंप या लिफ्ट पंप। यह आपने देखा हुआ हैंड पंप है जो आपने कॉमनली कई जगह पर यूज करा भी होगा। तो यहाँ पर अगर इसके वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप ये इसका वाटर आउटलेट, ये है आपका चेक वाल्व और ये है आपका सक्शन वाल्व। ये भी चेक वाल्व है लेकिन यहाँ पर ये आपका सक्शन वाल्व कहलाता है। ये है आपका पिस्टन, ये है आपका पिस्टन रॉड और ये है फोर्स रॉड। जब हम इसका यूज करते हैं और हैंडल को हम नीचे दबाते हैं तब क्या होता है ये पिस्टन ऊपर चला जाता है
और यहाँ पर क्रिएट होता है हमारा वैक्यूम। और बाहर हमारे कौन सा प्रेशर है इस वाटर लेवल पर, वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तब क्या होता है, ये जो पानी है इस चेक वाल्व को ओपन करके ऊपर आ जाता है। उसके बाद जब हम इस हैंडल को ऊपर करते हैं, यानी कि जब हैंडल ऊपर होगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। और यहाँ पर चूंकि पानी भरा हुआ है तब इस बकेट में यहाँ पर ये चेक वाल्व लगा है, तो जो पानी है अपने फोर्स के द्वारा इस चेक वाल्व को उठा देगा और इस एरिया में हमारा पानी भर जाएगा। चूंकि ये चेक वाल्व वन वे है, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है, यानी कि ऊपर की ओर, नीचे के होने आने पर ये बंद हो जाएगा। तो पानी इसके अंदर अब ब्लॉक हो गया है। और जब हम इसके बाद फिर से इस हैंडल को नीचे करते हैं और ये पिस्टन हमारा ऊपर जाता है, तब इस आउटलेट के द्वारा हमारा पानी हमको बाहर मिल जाता है। इसको लिफ्ट पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी को सिंपली लिफ्ट करा जा रहा है। और बकेट पंप इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें ये जो पिस्टन की शेप ये बकेट टाइप की है। इसके बाद आता हमारा फोर्स पंप। बकेट पंप और फोर्स पंप दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब पानी हमारा यहाँ पर भर जाता है तब इस हैंडल को जब हम ऊपर करेंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और इस पानी पर फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स के कारण ये जो वाल्व ए है जो कि हमारा आउटलेट वाल्व है, ये वाल्व ओपन हो जाएगा और पानी हमारा आउटलेट से होकर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ ये है वाटर की आउटलेट सप्लाई और ये है हमारी न्यूमेटिक सप्लाई। न्यूमेटिक सप्लाई से मतलब है एयर सप्लाई, क्योंकि ये जो डायाफ्राम होते हैं ये रबड़ के बने होते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम न्यूमेटिक सप्लाई देते हैं और डायाफ्राम हमारा जाता है राइट की ओर, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही डायाफ्राम राइट की ओर जाता है तो पानी पर फोर्स लगता है और पानी हमको बाहर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जैसे ही ये डायाफ्राम राइट की ओर जाता है तो लेफ्ट की ओर का जो डायाफ्राम है वो सिकुड़ जाता है और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और पानी यहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही ये डायाफ्राम लेफ्ट की ओर जाता है और पानी को बाहर देता है, उसी समय जो हमारा राइट वाला डायाफ्राम है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। यानी कि यहाँ पर एक बार लेफ्ट की ओर जाने पर भी हमको पानी मिलता है और राइट की ओर जाने पर भी पानी मिलता है। डायाफ्राम पंप का यूज ज्यादातर पेंट फैक्ट्री में जो स्प्रे पेंटिंग होती है वहां पर यूज करा जाता है। ज्यादा हो जाती है तब वो कहलाता है प्लंजर। यानी कि प्लंजर अपने स्ट्रोक से ज्यादा लंबा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रोक क्या होता है। सिलेंडर में आउटलेट वाल्व वेलोसिटी एनर्जी, ये जो है ये है हमारी केसिंग, ये है हमारा आउटलेट, ये जो बीच का है ये है हमारा इम्पेलर, ये है हमारा इम्पेलर वेंस, ये जो है ये इम्पेलर वेंस है। और ये जो सेंटर है ये हमारा कहलाता है आई, और ये है हमारा इनलेट। यानी जो हमारा पाइप, हमारा जो पानी है उसका जो इनलेट होगा वो कहाँ पर होगा, हमारा इस आई पर। तो जब ये पंप हम मोटर की सहायता से घुमाते हैं तब क्या होता है, ये इम्पेलर भी घूमता है और इस इम्पेलर के घूमने से क्या होता है, इस आई पर क्रिएट होता है वैक्यूम और इस वैक्यूम के कारण क्रिएट होता है हमारा एक प्रेशर डिफरेंस। और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण इस इनलेट से होता हुआ जो पानी है वो इस इम्पेलर में आ जाता है और इस इम्पेलर के घूमते हुए एक्शन के कारण, ये इम्पेलर के हमारे देखो डायरेक्शन है, जब ये इम्पेलर घूमता है तो जो पानी है हमारा इस डायरेक्शन से होता हुआ है। जब हमारा हाई वेलोसिटी का जो वाटर है या लिक्विड है वो इस शेप से होकर गुजरता है
तो क्या होता है? हेलो, येतो आवाज? हेलो हेलो, आवाज येतोय? प्रियंका, आवाज येतोय? हॅलो. हो सर. ओके. तर याच्याशी रिलेटेड अजून आपल्याला थोडा टॉपिक अजून बघायचा आहे. तर सोमवारी परत आपलं एक लेक्चर आहे. ठीक आहे. त्या लेक्चरमध्ये आपण हा टॉपिक क्लिअर करून टाकू आपला. ओके. कोणता टॉपिक? हा तो पंपचा टॉपिक आहे. हा आपला थोडासा झालेला आहे, अजून थोडासा बाकी आहे, भरपूर बाकी आहे. तर त्याच्याविषयी जस्ट आपली एक सुरुवात झालेली आहे आज. तर पंप्स कोण्या टाईपचे आहेत त्याचं ॲनिमेशनद्वारे पण मी तुम्हाला समजवेल आणि याची PDF तुमच्या गुगल क्लासरूमवर आज शेअर करेल. अजून हा टॉपिक संपलेला नाहीये. हा टॉपिक आपला सोमवारी क्लिअर होईल, पंप्स अँड मोटरचा. ठीक आहे. तर पंप्स कोणत्या टाईपचे आहेत, मोटर कोणत्या टाईपचे आहेत, त्याचे फंक्शन्स कसे आहेत, एक PDF जस्ट तुमच्या माहितीसाठी मी तुम्हाला शेअर करतो. हा टॉपिक आपला मिडमध्ये राहणार नाही. पंप्स अँड मोटर्स मिडमध्ये राहणार नाही. ठीक आहे. तर मिडमध्ये कोणतं टॉपिक राहील याच्या संदर्भात मी सोमवारी माझं लेक्चर तुम्ही जॉईन करा. सोमवारी मी तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे. हा टॉपिक सोडून बाकीचा जेवढाही झालेला आहे त्याच्याशी रिलेटेड आपली मिड राहील. ठीक आहे. हायड्रोलिक पंप्स अँड मोटर जो टॉपिक आहे तो सोडून द्यायचा आणि त्याच्यानंतर त्याच्याशी रिलेटेड सगळं आहे ते सगळं राहील. त्याच्यामध्ये 24 MCQ राहतील आणि 8 ऑब्जेक्टिव्ह राहतील. ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये डेफिनेशन राहू शकते, फिलअप राहू शकते, ट्रू फॉल्स राहू शकते, राईट इन शॉर्ट सेंटेन्स राहू शकते, फंक्शन राहू शकते, फॉर्म्युला राहू शकते. असे 8 ऑब्जेक्टिव्ह राहतील आणि 24 MCQ राहतील. तर 24 MCQ ला हाफ मार्क्स आहेत आणि 8 ऑब्जेक्टिव्हला 1 मार्क आहे. 12 आणि 8 20 मार्काची तुमची गुगल क्लासरूमच्या गुगल फॉर्मच्या स्वरूपात तुमची मिड टर्म एक्झाम होणार आहे. लक्षात आलं तुमच्या? असंच पॅटर्न सगळ्या सब्जेक्टला राहील. मी कोर्स टीचरला कॉन्टॅक्ट करून घ्यायचा, त्यांना तुमचा पॅटर्न विचारून घ्यायचा. लक्षात आलं? मिडचा टाइम टेबल तुम्हाला मी ऑलरेडी तुमच्या याच्यामध्ये सेंड केलेलाच आहे. कशामध्ये? ग्रुपमध्ये, व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये सेंड करून दिलेला आहे. आणि ज्यांचे काही 5व्या ओल्डचे काही सब्जेक्ट बॅक असतील तर तो सुद्धा टाइम टेबल मी तुमच्या फायनल इयरच्याच ग्रुपमध्ये टाकलेला आहे. म्हणजे तुम्ही दोन्ही टाइम टेबल बघायचे, कोणाचा येणार सब्जेक्ट असेल, कोणाचा बॅकलॉग असेल, त्यांनी त्याच्यातून हे करायचं आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तर चालेल, आपण आज इथेच थांबू. सोमवारचं लेक्चर. हा बोला सर. स्कॉलरशिपच्या फॉर्मचं कसं आहे नक्की, म्हणजे कधी भरायला? तुम्ही त्या संदर्भात धिरंगे सरांना कॉल करा. हो सर. धिरंगे सर स्कॉलरशिपचे इन्चार्ज आहेत, ते तुम्हाला गाईड करतील त्या संदर्भात. हो सर. चालेल चालेल, ओके. ठीक आहे. सोमवारी तुम्ही आता मीडचा स्टडी करणं चालू करून द्या. आजचा टॉपिक मीड मध्ये राहणार नाही एवढंच सांगतो. बाकी आतापर्यंत जेवढे टॉपिक आहे सगळे मी गुगल क्लासरूमवर टाकलेले आहे. तुम्हाला नोट्स इकडे तिकडे शोधण्याची गरज अजिबात नाही. गुगल क्लासरूम ओपन करायचं, त्याच्यामध्ये PDF नोट्स, MCQ, क्विज तुम्ही सॉल्व्ह केलेले असतील तर ते सगळ्या मध्ये त्याच्यामधूनच तुमचा पेपर असणार आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तर चालेल, मग सोमवारी आपण परत भेटू, परत आपण चर्चा करू. मी लेक्चर आताच एंड करतोय.